Good morning, class. So today we are going to revise the third chapter, that is the coordinate geometry. In this chapter, what we have to do is, first of all, this is the x-axis. This horizontal line is known as the x-axis. The vertical line is known as y-axis. Here the on the right and the x-axis and y-axis, they intersect each other at the point. That point is known as the origin. The coordinates of origin are 0 and 0. Okay. Now these two lines horizontal, these x-axis is also known as abscissa and y-axis is known as ordinate, and these abscissa and ordinate, they intersect each other at the point of origin, and this is the coordinate axis or the Cartesian plane, and these horizontal line and vertical lines, they divide the coordinate axis or the Cartesian plane into the four quadrants, that is the first quadrant, second, third and fourth quadrant. In the first quadrant, the values of x and y, these are positive. As you know, first value is of x and second value is of y, so both the values are positive. In the second quadrant, the value of x is negative and value of y is positive. In third quadrant, value of both the x and y is negative, and in fourth quadrant, the value of x is positive but the value of y is negative. ठीक है, तो इसके लिए ना ये फ्लो चार्ट है दैट यू हैव टू रिवाइज. दैट इज, to locate the position of a point in a plane, we require two perpendicular lines. One of them are horizontal and one is the vertical. As you know, this x-axis is the horizontal and y-axis is the vertical. The plane is called the Cartesian or coordinate plane. इस plane को क्या बोलते हैं? Cartesian plane बोलते हैं या coordinate axis बोलते हैं, coordinate plane बोलते हैं. And the lines are called the coordinate axis. तो lines क्या हैं? Coordinate axis. The horizontal line is called the x-axis and the vertical line is the y-axis. The coordinate axis divides the plane into four parts, that is the quadrants. The point of intersection of the axis is called the origin. ठीक है, तो ये ओरिजिन है. ये जो अभी आपको बताया है, इसी के बारे में ये फ्लो चार्ट था. नेक्स्ट है कि ये जो आपके पॉइंट्स है ना, ये जब आप इनको प्लॉट करते हैं, तो आपने 8th स्टैंडर्ड में प्लॉट किए हुए हैं, तो फर्स्ट जो सबसे पहले तो इनको विद इन द शॉर्ट ब्रैकेट में लिखते हैं. फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होता है वो एक्स का होता है और सेकेंड जो है वो वाई का होता है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय कोमा. ठीक है, तो फर्स्ट जो x का होगा उसे क्या बोलेंगे? एब्सिसा, और जो सेकंड होगा उसे क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट. ठीक है, तो जैसे a एंड b, तो इसका मतलब क्या है कि a पॉइंट जो है वो यहाँ पे है और b पॉइंट यहाँ पे है, तो जब हम इनको प्लॉट करेंगे तो a b पॉइंट यहाँ पे आ गया. ए बी पॉइंट की जगह ना आपको कोई डिजिट्स गिवन होंगी, जैसे 4 3 प्लॉट करो, 3 4 प्लॉट कर दो. ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0 0. इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू भी यहाँ पे 0 है और y की वैल्यू भी इस पॉइंट पे 0 है, और x एक्सिस और y एक्सिस जहाँ पे मीट कर रही है वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है. ठीक है, अब इसके बारे में क्या है? द x कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0. तो जो y एक्सिस का x का कोई भी कोऑर्डिनेट है ना, y एक्सिस आपकी ये है y एक्सिस लाइन, तो x का कोई भी कोऑर्डिनेट है ना, वो वहां पे उसकी वैल्यू क्या होगी? 0. सो द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस आर 0 एंड y. The y coordinate of every point on x axis 0, so the coordinate of any point on the x axis are x and 0. An equation of the type y is equal to mx represent a straight line passing through the origin. The coordinates of the origin is 0 and 0. ठीक है, तो ये आपने लर्न करना है. नेक्स्ट है इसके बेसिस के ऊपर ना पॉइंट्स तो आते हैं आपको प्लॉट करने की, कैसे प्लॉट करने हैं, तो इसके बेसिस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं. ये देखिए, if y coordinate of a point is 0, then where will this point lie on the coordinate plane? कि अगर y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है तो वो कोऑर्डिनेट एक्सिस में कहाँ लाई करेगा? यहाँ पे y की वैल्यू अगर 0 है तो वो कहाँ पे लाई करेगा? ऑन द x एक्सिस. इन विच क्वाड्रेंट द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट इज नेगेटिव. तो चारों क्वाड्रेंट्स आपको बता दिए पॉजिटिव कहाँ होते हैं, नेगेटिव कहाँ होते हैं. तो आपने बताना कि कौन से क्वाड्रेंट में एब्सिसा जो है वो नेगेटिव होता है.
तो एब्सिसा मतलब है आपका एक्स कोऑर्डिनेट, और एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ पे नेगेटिव होता है, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये आपको बताया था कि सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में जो एब्सिसा है वो क्या होता है, नेगेटिव। ये देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे एब्सिसा फर्स्ट एक्स की वैल्यू होती है और फर्स्ट जो है ये एक्स की वैल्यू है, सेकंड वाई की। तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट पे दोनों ही वैल्यूज क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है, एब्सिसा नेगेटिव होता है। ठीक है, Where does the point -2, 4 lie in the coordinate plane? कोऑर्डिनेट प्लेन पे -2, 4 कहाँ पे लाई कर रहे हैं? अब -2 x का कोऑर्डिनेट है और 4 जो है y का कोऑर्डिनेट है। x की वैल्यू माइनस है लेकिन y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट बोथ ऑफ द कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव लाई? कौन सा ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होती है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल द वैल्यूज आर पॉजिटिव। फाइंड द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 3 -3। ऑर्डिनेट का मतलब है कि y की वैल्यू -3 है एंड विच लाइज ऑन y एक्सिस, तो y एक्सिस पे भी लाई कर रहा है और ऑर्डिनेट जो है वो -3 है, तो x y की जगह आपने -3 पुट कर देना है। लेकिन जो लाई कर रहा है y एक्सिस पे, तो y एक्सिस में x की वैल्यू क्या होती है, 0, तो 0 एंड -3 आ गया आंसर। The point in which the abscissa and the ordinate have different signs which lie in the first quadrant. तो first in which will lie in the quadrant. ठीक है, तो वो किस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, जिसमें डिफरेंट साइंस होने चाहिए। ठीक है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द पॉइंट P57 फ्रॉम y एक्सिस। y एक्सिस से आपने डिस्टेंस निकालना है, तो y एक्सिस से डिस्टेंस निकालेंगे तो वो x कोऑर्डिनेट होगा, और x कोऑर्डिनेट कितना है, 5, और x एक्सिस से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला होगा तो वो y कोऑर्डिनेट होगा, और y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 7 है। तो आपसे पूछा हुआ है y एक्सिस के लिए, तो x कोऑर्डिनेट लिख लेना आपने, दैट इज 5। इक्वेशन पूछी होगी तो इक्वेशन में आपने लिख देना है x इज इक्वल टू 5, अगर इक्वेशन पूछी होगी। अगर सिर्फ कोऑर्डिनेट पूछा है ना तो 5 लिख देना, डिस्टेंस पूछा है तो वो 5 आ जाएगा। Find the point which lies on the line y is equal to -3x having the abscissa 3। तो इसमें क्या करना है ना, एब्सिसा क्या होता है, x की वैल्यू 3 है, ये वैल्यू ना इसमें पुट कर देनी है, y इज इक्वल टू -3, x की वैल्यू 3, तो -3 इंटू 3 इज -9, तो y की वैल्यू आ गई -9, और एब्सिसा x तो आपको 3 गिवन है, तो कोऑर्डिनेट पूछे हुए हैं, तो वो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 3 एंड -9। ठीक है, बाकी इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो आपने करने हैं, इसके लिए है तो वही चीज है, लेकिन आपने इनको करना है। अब देखिए एक क्वेश्चन है आपका, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड चेक वेदर दे आर कोलिनियर और नॉट। ये आपने बताना है कि कोलिनियर है या नहीं। आपने 8th में भी किया था, कोलिनियर क्या होते हैं, 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन में अगर लाई करते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2, 3, 3, 2, 1 एंड -5। तो प्लॉट करने आते हैं आपको 2, 3, ठीक है, 2 x का कोऑर्डिनेट 2 है, y इज 3, 3, 2 एंड 1 एंड -5। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये देखिए 1 एंड -5। तो जब इनको आप मतलब इसको मिलाएंगे ना, तो 2 पॉइंट से तो स्ट्रेट लाइन आ रही है, लेकिन थर्ड पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं फॉर्म कर रहे हैं। तो आपने क्या लिखना है, नो दे आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, सेकेंड है इसका पार्ट, -1, 1, -3, 3, -5, 5। तो इसको अगर आप प्लॉट करते हैं -1, 1, -3, 3, -5, 5, तो देखिए एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है। तो इसमें आपने क्या लिखना है, यस दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, तो ये कोलिनियर का क्वेश्चन था। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन क्या है, प्लॉट द पॉइंट्स A20, B50, C55, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट D सच दैट ABCD इज अ स्क्वायर। इसमें ABCD को आपने स्क्वायर फॉर्म करना है और A के कोऑर्डिनेट्स जो हैं, A के कोऑर्डिनेट्स हैं 20, ठीक है, तो आपने 20 प्लॉट कर लेना है, 50, 50 प्लॉट कर लिया, और C53 ये आपको गिवन है। और आपको ये भी बता रखा है कि इस तरह से फोर्थ पॉइंट निकालना है कि ABCD जो है वो स्क्वायर हो। तो आपने 2, 5 ये तो इसमें x एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहे हैं, आपने 5, 3 को भी इसके साथ ज्वाइन कर दिया। ठीक है, 5 ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, 2 से भी आपने स्ट्रेट लाइन बना लेनी है, यहाँ से इसको एक्सटेंड करना है और यहाँ से इसको एक्सटेंड करना है, तो D पॉइंट अपने आप आ जाएगा, और D के कोऑर्डिनेट जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो 2 होगा।
जो ए का कोऑर्डिनेट भी था एक्स कोऑर्डिनेट 2 और बी का कोऑर्डिनेट जो सी का कोऑर्डिनेट था दैट इज इक्वल टू 3, तो ये 3 होगा। तो इस तरह से ABCD जो स्क्वायर है और उसके कोऑर्डिनेट्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।